you. Today our today our topic is error analysis part 2, and in this video you have to learn about some numericals and some basic things about error. Okay, how will you subtract or add or multiply or divide error? Okay, yeah, all things you have to study in this lecture. So firstly, let us take an example. In this example, the refractive index of water, note down well for you, the refractive index of water is found to have the values, is found to have the values some values are given of refractive index, different values, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, and 1.33 and 1.33. These are the values given for an refractive index of water. Index is missing here. Refractive index of water. All are different values. Then, what is in these values? Which one is correct one? You don't know. I don't know. In this case, you have to calculate mean value, absolute error. You know very well what is absolute error. Another, the relative error. You also know about relative error. This is fractional error also. You can also use fractional error and the percentage error. And last one is percentage error. Now, you have to calculate all these things in this numerical, and different kinds of refractive index, different values of refractive index of water is given, 1.29, 1.33. Then how you can calculate? How you can calculate all these things? Take its solution for that. Okay, solution. First of all, you have to calculate mean value. What is mean value? Mean or average. What is mean or average value? How can you calculate this thing? By taking the sum of all these values and divide by this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 in number. Now add all these values and divide by it 8. Then you can calculate, then you can determine its mean. Now 1.29 plus 1.33 plus 1.34 plus 1.35 plus 1.32 plus 1.36 plus 1.30 plus 1.33
and whole divided by 8. In this way, you can calculate mean or average value. Okay. Now, sum up all these numerators value. Then, after adding all these values, we can get 1.3275. 1.3275. You can do this thing by taking the help of calculator. Otherwise, you can do it in free time. Okay. So this is the mean value. This is the mean value. Round off it by 2 places, because whenever we calculate the things in which with due to with or due to regard significant figure. You know the meaning of significant figure? When you calculate anything in this, you have to give your answer in the least significant value. In this least significant value is only after decimal only 2 digits are there, then your answer will be in after decimal at 2 decimal place you can write or you can take the answer. Now the answer will be 1.3, this 7, this is greater than 5, that's why 2 becomes 3. Now the correct answer is 1.33. All these values are refractive index denoted by, you know very well, mu. So this is mu bar. You can take this. Mu bar means it's the mean value. Is the mean value. Okay. Now, यहाँ तक तो सभी को आता है mean और average निकालना. But now we have to learn about absolute error. How will you calculate absolute error in this case? Absolute error को कैसे निकालते? This is first case. Now this one is second case. How will you calculate absolute error in measurement? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने ये मीन वैल्यू निकाली है और जितनी भी ये वैल्यूज आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इसमें से मीन वैल्यू में से इन सबको माइनस करना है. देखना 1.33 माइनस 1.29. इन दिस वे आपको ये सभी वैल्यूज करनी है. 1.33 माइनस 1.33, 1.34 minus 1.3, sorry, 3334, 1.33 minus 1.35, 1.33 minus 1.32, 1.33 minus 1.36, 1.33 minus 1.30, 1.33 minus 1.33, and don't bother about plus or minus values, positive or negative values. Now 1.33 minus 1.29, by solving we have 0.04. Now in second case 0. Now in third case minus 0.01. In next minus 0.02. In next plus 0.01. In next one minus 0.03. In next one plus 0.03, and in last 0 is there. Okay, all these are the absolute error in each case. In each case means if you want to take the absolute error in 1.29, then you can write 0.04.
1.33 0, 1.34 माइनस 0.01, किसी में ऐड होगी ये एरर और किसी में सब्ट्रैक्ट होगी। सभी के लिए अलग अलग निकाल दी, लेकिन क्योंकि हमने इन सभी को एक ही वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो सभी की इतनी सारी वैल्यू तो नहीं हो सकती अलग अलग, सिर्फ एक चीज को ले लिया, एक वैल्यू को फाइंड आउट करा सभी का मैथमेटिक्स करके मीन लेकर। इतनी सारी वैल्यूज थी, पजल होने से अच्छा है मैं सभी को टोटल करके डिवाइड बाय 8 कर दूं और उसके बाद जो भी आ रहा है उसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल सिस्टम तक क्या कर दिया, उसको राउंड ऑफ करा और राउंड ऑफ करके अब मैंने इन सभी वैल्यूज को लेने की बजाय ये लेनी शुरू कर दी। लेकिन अगर आप इन सभी वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर ढूंढना चाहते हो तो ऑल दीज आर एब्सोल्यूट एरर इन ईच वैल्यू, बट क्योंकि मैं इन सभी को इग्नोर करके सिर्फ एक वैल्यू ले रहा हूं तो अब मेरे को ये सारी इग्नोर करके सिर्फ एक वैल्यू लेनी होगी। वो कैसे लेंगे, ठीक है, तो मैं इन एरर का भी मीन लूंगा। क्या लूंगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करूंगा, मैं इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा। 1 2 6 7 8, दीज आर 8 इन नंबर। बट इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि मेरे को जब एरर की बात आती है तो मैं कोई भी एरर, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो मेरे को सभी की सभी एरर इन पॉजिटिव मैनर लेनी है, सभी का मैग्नीट्यूड लेना। क्योंकि एक चीज ये ध्यान रखना कि एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, कोई भी फार्मूला है जिसमें आप एक में से दूसरी चीज को माइनस कर रहे हो उसमें भी एरर है। सपोज आपके पास कोई ए चीज है कोई बी चीज है, इसमें भी एरर है और इसके अंदर भी ए में से बी को माइनस करना है, तो आप वैल्यू में से तो ट्रू वैल्यू में से तो इसको माइनस करिए, नो डाउट। लेकिन जब एरर की बात आएगी, एरर क्या होंगी, हमेशा प्लस होंगी। एरर हमेशा क्या होंगी, प्लस होगी। इस चीज का ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे हम इस बात का कि एरर इज ऑलवेज इन एडिशन। तो ये सभी जो नेगेटिव में दिख रही है ये सभी पॉजिटिव बनाकर आपने सब कुछ लिख देना है। 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 again plus 0 upon 8. Now solve it. This is the mean absolute error. आपने इन सभी वैल्यू को इग्नोर करके सिर्फ एक वैल्यू निकाली और वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.14 अपॉन 8। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करने के बाद आएगा 0.0175, लेकिन इतनी लंबी वैल्यू नहीं चाहिए हमें, राउंड ऑफ करना पड़ेगा कहां तक, 2 डेसिमल तक, क्योंकि सभी वैल्यू क्या है 0.02 तक है। तो यहां तक लेकर आओगे तो 0.02, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, सभी की अलग अलग निकाल दिया आपने, उसके बाद मीन निकाल दिया। मीन में क्या, ये 1.33 के साथ अच्छा लगेगा, ठीक है, 1.33 जो ये मीन वैल्यू निकाली थी आपने 1.33 प्लस माइनस 0.02। तो ये तो आ गया इन केस ऑफ मीन वैल्यू। और अगर आपको सबकी अलग अलग लिखनी है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो वैल्यू। मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ एक दो वैल्यूज को। ये सभी बच्चे नोट्स बना लेना इनके, जो मैंने पीडीएफ भेजी है आपके पास, उसका यूज करके और पढ़ना उनको अच्छी तरह से। कुछ चीजें हो सकती है कि मैंने ना बताई हो, लेकिन थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी वो, ठीक है। एरर को लेकर भी आएंगी आपके पास नोट्स, जिसमें सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, इन सब के बारे में बताया होगा। एक ग्रॉस एरर के बारे में बताएंगे। ग्रॉस एरर क्या होती है, जिसमें आपकी कॉमन गलतियां जैसे कुछ केयरलेसनेस की वजह से हो जाती है, कुछ वैसे हो जाती है,
तो वो सारी आ जाती है। तो एरर के बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे देखो एग्जाम। तो इसके बाद क्या बता रहा था मैं, हाँ, इन सभी वैल्यू के साथ आप इन एरर को भी लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट के लिए μ1 के लिए आपने लिख दिया 1.29 प्लस माइनस 0.04। देखो सेपरेट में भी लिख सकते हैं, सेपरेशन देकर लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज के लिए अलग अलग भी लिखा जा सकता है। 1.33 प्लस माइनस नेक्स्ट क्या है 0, μ3 1.34 प्लस माइनस 0.01। देखो ये प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं, प्लस भी उसकी और माइनस भी। अब यहाँ पर माइनस आ गया है 1.35 प्लस माइनस 0.02। तो वो किसी भी तरह से आपसे आंसर पूछे तो आपको इस तरह से ये सारी की सारी 8 की 8 वैल्यूज नोट करनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। ओके, तो आया ये समझ में कि हम मीन लेकर एक वैल्यू देना चाहे तो ये दे सकते हैं सभी वैल्यूज को इग्नोर करके, लेकिन अगर सबके लिए चाहिए तो सबके लिए। अब इसका मतलब पता है आपको कि 1.33 में 0.02 को ऐड करिए और माइनस करिए, तो आपके पास आ जाएगा लोएस्ट वैल्यू 1.31 और हाईएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1.35। तो इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस जो म्यू की वैल्यू है वो वेरी कर सकती है 1.31 और 1.35 के बीच, ये मतलब होता है। ये कौन सी वैल्यू हो गई अब ट्रू वैल्यू, ये कौन सी हो गई एब्सोल्यूट एरर। क्या हो गई एब्सोल्यूट एरर, पता है ना इनका, इसको कौन सी वैल्यू बोलेंगे, ऑल दीज वैल्यूज आर ट्रू वैल्यूज और ये सब क्या शो कर रही हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। पता है ना, अगर इसको म्यू से लिखेंगे तो इनको किससे लिखेंगे डेल्टा μ1, ये क्या होगा डेल्टा μ3, ये क्या होगा डेल्टा μ2 से, इसको किससे लिखेंगे डेल्टा μ4 से। ओके, तो यहां पर भी लिख लो डेल्टा म्यू ठीक है, डेल्टा म्यू निकालना है ये आपने, ये म्यू बार हो गया, ये μ1 μ2 μ3 हो। काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। चलो आफ्टर दिस और क्या निकालना था इस न्यूमेरिकल में, मीन वैल्यू निकाल दी आपने, एब्सोल्यूट एरर निकाल दी। नाउ द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया इसी में। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, मीन निकालना था आपने, किसका निकालना था ना, ये सभी वैल्यू का मीन, और ट्रू वैल्यू आपको पता है, तो दिस बाय दिस एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, यानी कि आप अपनी भाषा में लिखना चाहो तो डेल्टा म्यू मीन, साथ में क्या लगा दो मीन लगा दो, तो जैसे मैंने बार का यूज करा था यहाँ पर म्यू बार, सॉरी डेल्टा म्यू मीन अपॉन क्या लिखना था म्यू बार, म्यू बार। डेल्टा म्यू मीन क्या है, जितनी भी एरर थी सबके अंदर सभी को आपने क्या करा ऐड करके डिवाइड बाय 8 करा तो कितना आ गया था 0.02 अपॉन म्यू बार कितना आया था 1.33। तो यहाँ से आपके पास रिलेटिव एरर की वैल्यू आ जाएगी। रिलेटिव एरर में क्या होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। देखो सही फार्मूला क्या होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, ऐसे याद रखना होता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कौन सी हुई 0.02, ट्रू वैल्यू क्या, तो दिस बाय दिस करके आप क्या करते हो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हो आप इसको,
0.02 अपॉन 1.33। नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.015। लेकिन इतनी लंबी वैल्यू नहीं लेंगे हम, क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। आफ्टर राउंड ऑफ क्या कर सकते हो, 5 से पहले ओड है, एक ऐड हो जाएगा 0.02 ही आएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई रिलेटिव 0.02। और ये सब किसमें होती है, एरर हमेशा कैसे लोगे आप, प्लस माइनस के साइन के साथ। तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू फॉर रिलेटिव एरर प्लस माइनस 0.0। नाउ लास्ट 4 परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे लोगे, सभी के लिए अलग अलग भी निकाल सकते हो आप। मैंने सबकी अलग अलग वैल्यू थी ना, सबके लिए अलग अलग परसेंटेज भी निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि हम मीन को लेकर ही कर रहे हैं सब कुछ, तो मीन वैल्यू को लेकर ही आप ये करोगे सारे काम। तो क्या होता है इसका फार्मूला, डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू बार इंटू 100%। ओके, तो इसको सोल्व करके क्या आया था 0.02 इंटू 0.02 ले सकते हो, नहीं तो राउंड ऑफ नहीं करना तो ये भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। तो इसको ले ले, क्योंकि परसेंटेज में हम रिस्क नहीं लेंगे। देखते अभी 0.015 इंटू 100%, तो क्या आ जाएगा 1.5%। और अगर मैं 0.02 ले लेता तो क्या आ जाता 2% आंसर आता। तो दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, जो एक्चुअल वैल्यू आपको दे रहा होगा। देखो ये तो राउंड ऑफ करने के बाद है ना, राउंड ऑफ करने से पहले इसमें कमी के चांस बहुत कम होते हैं। तो हमें परसेंटेज एरर में राउंड ऑफ करी हुई वैल्यू को नहीं लेना है। हाँ सभी में ले सकते हो आप ये वैल्यूज, लेकिन जब आंसर देने की बात आए तो राउंड ऑफ करना होता है, वैसे नहीं। देखो यहाँ पर ये आंसर आ चुका था, लेकिन आंसर मेरे को आंसर देना था किसका, रिलेटिव एरर का, तब राउंड ऑफ किया। अदरवाइज आंसर तो यही था ना हमारा, राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर का रिगार्ड में तब जाकर दिया था। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर ले रहे हैं, तो परसेंटेज एरर में हम राउंड ऑफ वैल्यूज को कम ही यूज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे 0.02 यूज करा आपने, 0.075 यूज करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा वैसे। लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसीलिए हम इनका यूज नहीं करते। यहाँ पे तो कैलकुलेशन बहुत कम थी इसलिए कर दिया, अदरवाइज दोनों में से सुपीरियर ये हो। ठीक है, लास्ट में आंसर देते हुए सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना आपने बस। ओके, तो ये न्यूमेरिकल काफी लेंथी था, इसमें सारी चीजें थी, दैट्स व्हाई इसको चूज किया गया आपके लिए। चलो इसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे हम एरर को लेकर। तो एक इसका थ्योरी भी है, मतलब डेरिवेशन यू कैन से, थ्योरी भी है। उस थ्योरी से समझिए या डायरेक्ट समझिए, मर्जी आपकी है। थ्योरी तो देखो नोट्स में आ ही जाएगी, वो क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें पहले वो देख लेते हैं, क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें। सबसे पहले आप वो देखेंगे, एरर इन सम, प्रोपागेशन ऑफ एरर बोलते हैं इसको, प्रोपागेशन ऑफ एरर। मतलब एक तरह से एरर का हिसाब कैसे करो, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कह सकते हो आप, प्रोपागेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अगर हमें दो वैल्यूज को ऐड करना हो तो एरर का क्या हिसाब रहेगा, यानी कि एरर इन सम और एडिशन भी कहते हैं, और एडिशन भी कहते हैं। कैसे, इसके अंदर सबसे पहली बात, आपको वैल्यू लेनी आती है। सपोज मेरे पास कोई ए चीज है, क्या है ए, लेकिन उसके अंदर एरर है मेरे पास डेल्टा ए, जनरल लेकर चल रहा हूं। इसी तरह से सेकेंड थिंग है मेरे पास बी, मेरे पास डेल्टा बी।
ए और बी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैंने कोई फार्मूला लगाया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। x इज इक्वल टू ए प्लस बी। सपोज ये था 3 मीटर, ये है 5 मीटर। 3 और 5 मीटर को मैंने ऐड करना है, ऐसे ही ए और बी को मैं ऐड कर, तो ऐड किया मैंने, तो x कितना आ गया मेरे पास, a प्लस बी। इसी को एग्जांपल के थ्रू भी कर लेते हैं। सपोज मेरे पास है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इसी तरह से बी की वैल्यू ले रहा हूं मैं 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये बी की वैल्यू है। आप अच्छी तरह से जानते हो, इसको ए बोलेंगे और इसको डेल्टा ए। ये ट्रू वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर। दिस इज बी एंड दिस इज डेल्टा बी। ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, ए और बी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ, ए प्लस बी कर दिया मैंने। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, बी की क्या है 30 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। लेकिन जब इनकी वैल्यूज में एरर थी, तो क्या इनके सम वाली वैल्यू में एरर नहीं होगी? यस और नो? यानी कि मेरे पास x तो आ गया, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा x कहाँ है? तो डेल्टा x निकालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। डेल्टा x एरर कहते हैं हमेशा ऐड होंगे, भले ही फार्मूला किसका है, प्लस का। भले ही मैंने ये दोनों प्लस कर दियो, ठीक है, ये भी प्लस की होंगी, ठीक है। भले ही ये माइनस कर दूं, देखो x इज इक्वल टू सपोज b माइनस ए फार्मूला होता, तो क्या करता मैं 30 माइनस 10 कितना आ जाता 20 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस माइनस क्या लगाऊं इसके साथ, प्लस माइनस क्या लगाई इसके साथ, क्योंकि एरर तो होगी ना, जिसके वैल्यू में ही कमी है उसके प्लस माइनस करने के बाद भी तो कमी रहेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, बाय समेशन ऑफ दीज एब्सोल्यूट एरर। यानी कि अगर आपको डेल्टा एक्स चाहिए, तो आपको डेल्टा ए और डेल्टा बी को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। इस केस में भी क्या करना होगा, डेल्टा एक्स चाहिए तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना होगा, भले ही ये फार्मूला माइनस का है, भले ही ये फार्मूला माइनस का है, एरर हमेशा ऐड होती है। अब इसी चीज को आप इस थ्योरी में देखिए, मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी करा। क्या करा, ए प्लस बी। ए प्लस बी, प्लस वाले केस में प्लस होंगी ये, अभी देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस डेल्टा ए, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा, बी प्लस माइनस डेल्टा। ओपन करिए ब्रैकेट को, ये आपको गिवन है और मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया इसमें। फर्स्ट ये वैल्यू पुट कर दी है, बी की वैल्यू ये पुट कर, तो x इज इक्वल टू, एरर भी ले रहे हैं ना हम साथ में, हाँ एरर भी ले रही है, तो आपको ये x प्लस माइनस डेल्टा, कि हमने इन दोनों को ऐड किया, तो हम इन वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो देख लीजिए 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। इन दिस केस 20 सेंटीमीटर, in this case also we have to combine these two errors, two absolute errors, and then your final answer will be 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि भले प्लस करे या माइनस करे, तो फार्मूला जो वैल्यू होंगी, ट्रू वैल्यू तो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, बट एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होंगी, या एरर हमेशा क्या होंगी, एब्सोल्यूट एरर भी छोड़िए, माइंड में फिट करिए, एरर हमेशा क्या होंगी, ऑलवेज सम होगी। इन सम केस और एडिशन केस, इन सब्ट्रैक्शन केस, बोथ, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी होगी, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, कुछ और ही होगा। तो कल पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका
आज ये न्यूमेरिकल करना जो इससे पहले करवाया गया था, और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, कल आपके बहुत काम आने वाला है ये। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।